یہ برائی ہے اور سماج اس برائی سے نہیں بچ پا رہا ہے. ورنہ نکاح تو بڑا پاکیزہ رشتہ ہے, اور نکاح کے بارے میں اگر 2 جملے کہہ دیے جائیں تو بس کافی ہے. نکاح کے لیے, نکاح اور زنا میں فرق سمجھتے ہو کیا ہے؟ نکاح کتنا پاکیزہ رشتہ ہے اور زنا کاری کتنا گندا اور کتنا بھیانک جرم ہے. 2 لفظوں میں سمجھ لیجئے اس کو آپ بس. نکاح کے لیے جائز مقام دینے کے لیے, ایک بیوی بنانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے سسر نے کہا تھا, موسیٰ میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میری بیٹی کی مہر یہ ہوگا کہ تمہیں 10 سال میرے گھر میں مزدوری کرنا پڑے گا, میرے گھر میں تمہیں لیبر کا کام, مزدوری کا کام تمہیں کرنا پڑے گا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی بنانے کے لیے یہ حق مہر ادا کیا, اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر کا 10 سال کا مزدور بن گئے, 10 سال تک مزدوری کی, اور یہی مزدوری کو مہر مانا گیا تھا. میرے بھائیوں, آج مہر لڑکی کا 1 لاکھ رکھ جائے تو لڑکے والے کا کلیجہ پھٹ جائے. 1 لاکھ 5 لاکھ کی گاڑی مانگ رہا, بے شرم بےہودہ, تو تجھے شرم نہیں آ رہا؟ اگر 1 لاکھ مہر لگ گیا تو تیری نانی مر گئی, چھٹی کا دودھ تجھے یاد آ رہا ہے؟ مہر لڑکی کا حق ہے, وہ مانگ سکتی ہے, اور آپ دینا چاہے تو دیں, اور نہیں دے سکتے تو منع کر دیجئے نکاح سے پہلے کہ میں اتنا مہر نہیں دے سکتا. لڑکی کی مرضی ہوگی تو نکاح کرے گی, لڑکی کی مرضی ہوگی تو نہیں کرے گی. حضرت موسیٰ نے 10 سال مزدوری کی ہے, 10 سال, اور یہی مہر تھا حضرت موسیٰ کا. تب جا کر کتنا پاکیزہ رشتہ ہے, تب بیوی بنی, تب وائف کہلائی. اور زنا کتنا غلط کام ہے, آسان تو بہت ہے. اور ذرا تصور کرو حضرت یوسف علیہ السلام کا منظر, اس کا شوہر بادشاہ مصر کی بیوی, شوہر بادشاہ, اپنا کام کاج دیکھ رہا ہے آفس میں بیٹھ کر. یہاں بادشاہ کی بیوی یوسف سے کہتی ہے آؤ, کہتے ہیں معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, لے کے گئی اندر. سوچا چلو میرے مالک کی بیوی ہے, پتہ نہیں کیوں لے جا رہی ہے. یہ دروازہ بند, دوسرے میں گئی, وہ دروازہ بند, تیسرے دروازے میں لے گئی, وہ دروازہ بند. ایک نہیں تھا, غلقت الابواب, غلقت الباب نہیں کہا, غلقت الابواب. کئی دروازے, کئی روم تھے, بہت سے, کئی روم کے اندر وہ لے گئی. یہاں سے گئی دروازہ بند, دوسرے روم میں گئی دروازہ بند, تیسرے روم میں گئی دروازہ بند, چوتھے روم میں گئی دروازہ بند, آخری روم میں گئی. وہاں جا کر کہتی ہے یوسف آؤ. کہا معاذ اللہ, اس لیے لے کے آئی ہو تم مجھے؟ شیطان سوار تھا بادشاہ کی بیوی پر. یوسف نے چہرہ گھمایا, بھاگے. پہلا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئی, پیچھا وہ بھی کر رہی ہے. دوسرا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے, پیچھا وہ بھی کر رہی ہے. تیسرا دروازہ کھول کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے, پیچھا وہ بھی کر رہی ہے. لاسٹ دروازہ کھولا, اس نے پیچھے سے دامن پکڑ لیا, پیچھے سے دامن پکڑا. یوسف ایسے دروازہ کھولنا چاہتے ہیں, پیچھے سے یہ کھینچتی ہے, پیچھے سے کرتا قمیص پھٹ جاتی ہے. یوسف بادشاہ مصر کی بیوی پر گر گئے. زلیخا نام سب غلط ہے, کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے, اس لیے ہم نہیں بول رہے ہیں. قرآن میں صرف بادشاہ مصر کی بیوی آیا ہے, وہی ہم بول رہے ہیں بس. وہاں یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر کی بیوی کے اوپر گر گئے. دروازہ کھل گیا, پکڑے ہوئے تھے, کھینچا ادھر سے, اس نے پیچھے سے قمیص پکڑ کے کھینچی, ایسے گرے. پہلے وہ گری اس کے اوپر یوسف, اور سامنے جب دروازہ کھولا تو سامنے بادشاہ کھڑا ہے. کہیے کیا کہو گے؟ جھٹ سے کھڑی ہوتی ہے, فوراً الزام لگانے میں لڑکیاں بڑی ماہر ہوتی ہیں, اور اس کا تجربہ ہم سے زیادہ کون سمجھتا ہوگا.
यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर फौरन इल्जाम। मेरे प्यारे शौहर, उस आदमी की सजा क्या होनी चाहिए जो आपकी बीवी पर गलत नजर डाले? जेल में डाल दिया। जिना से बचने के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 10 साल की जिंदगी जेल में काट दी। अब जिना और निकाह का फर्क समझ में आया आपको? निकाह करने के लिए हजरत मूसा ने 10 साल मजदूरी की और यही मेहर अदा किया अपने ससुर का, अपनी बीवी का यही मेहर अदा किया। निकाह के लिए 10 साल मजदूरी करके मेहर अदा किया और जिना से बचने के लिए हजरत यूसुफ ने 10 साल जेल में सजा भुगत ली। सजा भुगत लेना उन्होंने गवारा कर लिया, लेकिन बादशाह मिस्र की बीवी के साथ जिना करना गवारा नहीं किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं। आए कलिया चक वालों, आए बारा घरिया लखीमपुर के लोगों, आए बंगाल वालों, जरा तसव्वुर करिए जिना का और निकाह के फर्क को समझने की कोशिश कीजिए। निकाह के लिए यूसुफ मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल मेहर अदा किया मजदूरी की शक्ल में, तब जाकर बीवी बनाया। और जिना से बचने के लिए हजरत यूसुफ ने 10 साल जेल में सजा भुगत ली, लेकिन जिना नहीं किया। और बादशाह मिस्र की बीवी अगर चाहती और यूसुफ तैयार हो जाते तो वो जेल से भी निकालने के लिए तैयार थी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम बार बार उसकी दावत को ठुकराते रहे। नहीं नहीं, मेरे लिए जेल ठीक है, मैं जिना नहीं करूंगा, मैं उसके करीब नहीं जाऊंगा। यहां तक कि ये बात इतनी फैल गई, इतनी आम हो गई कि मिस्र की औरतें भी बादशाह मिस्र की बीवी को ताने देने लगी। देखो कितनी नाकारा है, देखो कितनी कमीनी है, देखो कैसी चुड़ैल है, अपने गुलाम को दिल दे बैठी है, अपने नौकर को दिल दे बैठी है। देखो तो अपने नौकर को झूठा फंसवा दिया है, देखो उसको जेल में डाल दिया है। अभी भी कहती है मैं तुम्हें जेल से निकाल लूंगी, लेकिन मेरी तमन्ना पूरी कर दो। देखो तो वो अपने एक नौकर को, अपने गुलाम को दिल दे बैठी। लेकिन जब बादशाह मिस्र की बीवी जो मजबूर थी मोहब्बत में यूसुफ के, उसने जब औरतों के ये ताने सुने तो उसने कहा अच्छा तुम जानती हो, नहीं जानती हो मैंने यूसुफ को क्यों दिल दिया है? देखना चाहती हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। सबको दावत दे दी, इधर आओ, बुला लिया। सबके हाथ में फल दे दिए और सबके हाथ में छुरियां पकड़ा दी। लो इन छुरियों से इन फलों को काटो। और जब मिस्र की औरतें फल काटने लगी तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिस्र की बादशाह मिस्र की बीवी ने कहा जरा इन औरतों के सामने से गुजर जाओ। यूसुफ जाओ, इन औरतों के सामने से गुजर जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने मालिक की बीवी का हुक्म मानते हुए उन औरतों के सामने से गुजर रहे हैं। जो औरतें फल काट रही थी, उन्होंने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को देखा, उनकी ब्यूटी को देखा, उनके चांद जैसे चमकते हुए चेहरे को देखा, तो फल काटती जा रही हैं और देखती जा रही हैं। फल कब के कट गए, अब फलों पर नहीं उनकी उंगलियों पर छुरियां चल रही थी और उनकी उंगलियां कट कट कर जमीन के ऊपर गिर रही थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर उन औरतों ने अपने हाथों की उंगलियां काट डाली। वह कत्ताना अयदियहुन्ना, उन्होंने अपनी उंगलियां काटी नहीं। अरबी में कता यक्ताओ के माना काटना और कत्ता युकत्यो तख्ती के माना होते टुकड़े टुकड़े करना। उन्होंने अपनी उंगलियों को काटा ही नहीं था, बल्कि अपनी उंगलियों के टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। और यूसुफ को देखते हुए ऐसी बेहिस हो चुकी थी, सुन हो चुकी थी कि वो उंगलियां काट रही थी, लेकिन तकलीफ उनको महसूस नहीं हो रही थी। जैसा कि वो चीज सुन कर दी गई हो यूसुफ की खूबसूरती देखकर। और डायरेक्ट यूसुफ को जब देखा, उंगलियां कट के जमीन पर गिरी है, लेकिन चीख पड़ती है माहाजा बशरा। आए बादशाह मिस्र की बीवी, जिस नौजवान को तूने हमारे सामने से निकाला है, जिस नौजवान को तूने हमारे बीच से निकाला है, माहाजा बशरा, ये इंसान हो ही नहीं सकता है, ये तो फरिश्ता दिखाई दे रहा है, ये इंसान लगता ही नहीं है, देखने में इंसान नहीं लगता। यानी अभी बादशाह मिस्र की बीवी यूसुफ को दिल दे बैठी थी, लेकिन अब मिस्र की औरतों ने देखा उनकी खूबसूरती को तो सारी औरतें दिल दे बैठी। हजरत यूसुफ को ये तो इंसान नहीं फरिश्ता है। मेरे भाइयों, निकाह के लिए हजरत मूसा ने 10 साल मजदूरी करके मेहर अदा कर दिया और जिना से बचने के लिए हजरत यूसुफ ने 10 साल की कैद काट ली, लेकिन जिना नहीं किया। जिना और निकाह के फर्क को समझाने के लिए इससे अच्छी मिसाल और कौन सी दी जा सकती है। यहां तो
चंद टकों में जिस्म मिल जाते हैं, और चंद टके तो छोड़ दो, अगर अच्छी खासी दोस्ती हो तो फ्री में भी जिस्म मिल जाते हैं। कान पर जू तक नहीं रिंगता हमारे, हम कर क्या रहे हैं? यूसुफ ने 10 साल जेल में रहना गवारा कर लिया, लेकिन जिना नहीं किया। इतना भयानक जुर्म है जिना कि जिना से बचने के लिए यूसुफ 10 साल की सजा भुगत लिए, वो ठीक है। और किसी को हलाल बीवी बनाने के लिए, जायज बीवी बनाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल अपनी बीवी के बाप की गुलामी कर ली, घर में काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, 10 साल हम खिदमत करेंगे, उसके बाद आपकी बेटी के साथ हम निकाह कर लेंगे। यही महर था। जरा अंदाजा लगाइए, महर देकर मर्द बनो और बीवी बनाओ, वरना जिना तो सबसे आसान काम है। और इसीलिए कुरान ने इन्नहु काना फाहिशतम व साअ सबीला कहा, यह बहुत गंदा रास्ता है। आप जिस बहन बेटी के साथ जिना करने जा रहे हैं, जिसकी भी बहन बेटी है, ये वो रास्ता है जो तुम्हारी बहन बेटी तक जा रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम किसी दूसरे की बेटी के साथ जिना करो और तुम्हारी बेटी के साथ कोई जिना ना करे। ये हो ही नहीं सकता कि तुम किसी दूसरे की बहन के साथ गलत काम करो तो तुम्हारी बहन के साथ गलत काम ना हो। ये हो ही नहीं सकता। इन्नहु काना फाहिशतम व साअ सबीला, अल्लाह ने कहा जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, जिस सड़क पर तुम चल रहे हो, वो इतना गंदा रास्ता है कि उस सड़क का आखिरी किनारा तुम्हारे घर तक जा रहा है, तुम्हारे दरवाजे तक जा रहा है। यानी तुम जिस सड़क पे चल रहे हो उसका दरवाजा तुम्हारे घर में खुलता है। बचो।